who do you consider a better signing, Bruno Fernandes या Ronaldo? Keep Bruno or keep Menu? क्यों मरवाते हो यार ऐसे तुम लोग यार, क्यों मरवाते हो? Most overrated United player? गालियाँ पड़ने वाली है इसके लिए, but I'm going to say for the sake of saying it, but I'm going to say it. So welcome to the 10th episode of EJ into Creator 11, and before we start I'd like to thank my merchandise partner the Jersey Studios for these absolutely comfortable jerseys. And today we have Animesh Thakkar from Rivalry Rooms. Welcome Animesh on the show. And so for the very first round I'm gonna take it very simple and very smooth just to break the ice. मैं rapid fire round पूछूंगा और so basically इस round के अंदर क्या है 10 questions मैं आपसे पूछूंगा and you have to be very quick with those questions. पहला question, one player you'd secretly want from Liverpool? One player I secretly want from Liverpool. यार, actually वो चला गया player, but I would have taken Luis Diaz. Okay, from current squad? Current squad, I would have anyone any day would have taken Mo Salah. One word for Carrick. One word for Carrick, majestic. Most overrated United player? गालियाँ पड़ने वाली है इसके लिए, but क्यों मरवाते हो यार ऐसे तुम लोग यार, क्यों मरवाते हो? I'm going to say for the sake of saying it, but I'm going to say it. It is Nani. Nani. Oh. I thought आप Rashford बोलोगे, but anyways, coming to the fourth question, peak Wayne Rooney or peak Cristiano Ronaldo at United? Peak Wayne Rooney. Peak Wayne Rooney. Biggest flop signing ever for United? देखो मैं honestly बोलने वाला था, unfortunately it comes to Anthony Ugarte, even though वो गलती नहीं है. I think I would tie both of them. Okay. Anthony और Ugarte. Okay. Anthony actually is doing good यार, उसके अंदर बेटिस के अंदर अच्छा खेल रहा है. हमारे लिए नहीं हुआ ना. ऐसे इनफैक्ट नॉट एंथनी, स्कॉट मैकटोमिनी, अपना वो भी इनफैक्ट कौन अभी तो साइन हो गया वो नाम ही आ रहा हॉयलैंड, रास्मस हॉयलैंड 44 बिलियन. या तो देखो हॉयलैंड को मैं नाम ले सकता था, एंथनी का. अगेन एंथनी इफ यू आस्क रैपिड फायर है तो बट मैं या एडिट कर देना, वो चल टेंशन नहीं है. Anthony was a 40 million acceptance. United decided to not sign him at 40 and paid 85 for him. It's not his fault. But now sadly money was paid, impact was not there. तो बस बारसा के सामने गोल मारा बस काफी. हाँ. Okay. Which rival fan base is the most annoying online? Arsenal. Arsenal. Okay. This one is tough. Keep Bruno or keep Menu? Keep Bruno, keep Mainu. Bruno. One player you'd sell instantly from this current squad? Diego Dallo. Okay. Most delusional United opinion you genuinely believe? The most deluded opinion that I genuinely think is not that deluded is the fact that in any given season, Manchester United is capable of producing a comeback in any situation more than any other club. We are the original comeback kings. No one else comes close. अच्छा, last question. इसके बाद हम थोड़ा follow up भी करेंगे इसके ऊपर. Sack the manager too early or back the wrong manager for too long? Sack early. Sack early. मैं मतलब इसी पे आने वाला था क्योंकि सेकंड सेगमेंट अपना डिबेट ओपिनियन का ही है. जैसे हम पूरा ट्रेंड देख रहे हैं प्रीमियर लीग का, इनफैक्ट अभी रीसेंट प्रीमियर लीग गेम्स के अंदर चेल्सी डिजास्टर का इनफैक्ट डिजास्टर हो गया, टॉटनम डिजास्टर हो गया, अपना यूनाइटेड डिजास्टर, और अपना और कौन सा क्लब था, नॉटिंघम फॉरेस्ट. इनफैक्ट ये सारा नॉटिंघम फॉरेस्ट, वेस्ट हैम इज द बेस्ट एग्जांपल ना ये सीजन. वेस्ट हैम रेलेगेशन जोन, वेस्ट हैम हो गया, इनफैक्ट वो भी अपना न्यूकासल भी न्यूकासल, लेकिन सैक तो नहीं किया ना, देव केप्ट एडी आउट. हाँ, they've kept it. हाँ, मतलब वेस्ट हैम, मतलब हाँ इन्हीं सब क्लब्स में से ये इतना ट्रेंड जो मतलब जो चल रहा है इतना सैकिंग का ट्रेंड, मतलब आ रहा है, रिजल्ट दे रहे हैं, ये क्या, ये बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो गया, अमेरिकन गेम्स से इन्फ्लुएंस हो गया, फिर मतलब ये कैसे चल रहा है, मतलब इतना क्यों हो रहा है ये? मनी ड्रिवन बहुत माइंडसेट है कि यार रिजल्ट ड्रिवन हो गया है. दे मेजर थिंग्स ऑन मैट्रिक्स आउटसाइड ऑफ फुटबॉल. इमोशनल एस्पेक्ट थोड़ा उड़ा दिया है गेम के अंदर से. आई अंडरस्टैंड कि फुटबॉल में बहुत पैसा जाता है, स्पेशली प्रीमियर लीग में. रेलेगेशन होने के बाद बहुत फटका लगता है. आप थर्ड फिनिश, आप 6th आओ कि 10th आओ, उससे प्रीमियर लीग में पैसे का बहुत फ़र्क होता है, जो बाकी नॉट छोटे क्लब बट मिड टेबल क्लब्स के बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अगर जो समझो फिनिश कर सकते हो 8th एंड यू हैव अ बैड मूवमेंट एंड यू फिनिश 15th, जैसे ये प्रीमियर लीग सीजन में बहुत हो सकता है बहुत क्लब्स के साथ. न्यूकासल वाज टेरिबली 15th, दे कुड स्टिल फिनिश आई थिंक अप टू 8th. मैच थोड़ा ऑफ हो सकता है. तो पैसा इमेजिन उनका कितना चेंज हो सकता है ना टेलीविजन राइट्स में. तो वो रिजल्ट के चक्कर में ये सैक एंड चेंज जल्दी होता है. सो व्हाइल आई हैव सेड दैट आई रादर सैक अर्ली पर्सनली फॉर माय क्लब बिकॉज आई फेल्ट दैट समटाइम्स गिवन पीपल टू मच टाइम. I believe most Premier League clubs sack managers too much. They should give more time. They should give them more time. Yes. अभी समझ लो नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी इतना उनका रिसर्जेंस है, पहुंच गया यूरोपा सेमीफाइनल तक, राइट? हाँ. मतलब अभी आयंस को लेके आए थे तो और टाइम दे थे. जॉन डाइच एस्केप आर्टिस्ट एक है, उसको निकाल दिया.
हाँ What did he do wrong? Nothing. So that is mindless. वो मतलब megalomaniac behavior है. ये attitude ego भी आ जाता है बहुत. पैसे मैं देता हूँ, वो क्लब तो में है चल ही, रहा हूँ, तुम्हारी dash निकलो, dash dash. निकल लो It's तुम an यहाँ ego problem more than that. You know, American mindset छोड़ के it's an ego problem. It's become that out of connection with fans, emotion content है ना, वो connect तोड़ दिया है लोग ने. देखो आप बोल सकते हैं न्यूकासल ने गलती की, एडिया को ज़्यादा रखते हैं, बट आई अगेन मेंटेन कि आपने उनको एक विंडो में इसाक होने के बाद वॉल्टर मोडे और इलांगा खरीदा है. कम ऑन मैन, लाइक आप एडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या वो ज़्यादा कर सकता था? श्योर, ऑफ कोर्स, 100%. कीथ एंड्रूज को देखो ब्रेंटफोर्ड के साथ, बट समटाइम्स आई फील मैनेजर्स हैव गॉट सैक्ड टू अर्ली, एंड स्पेशली मिड टेबल क्लब्स के लिए इट्स बीन द वर्स्ट थिंग. लुक एट द बॉर्नमथ्स, लुक एट द ब्राइटन्स. वो मैनेजर छोड़ के जा रहा है, बट दे हैव केप्ट अ पैटर्न. ओके, कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन. मेरे को ये जानना है, ये इट्स अ पर्सनल थिंग फॉर मी एज वेल, कि who do you consider a better signing, Bruno Fernandes for Manchester United या Ronaldo For Manchester United in the early days? In the early days, in fact, मतलब अगर आप पूरा का पूरा अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ब्रूनो का और रोनाल्डो का, तो who do you consider? दोनों eras में unfortunately eras are two different eras. So I don't think, genuinely बोल रहा हूँ, कंपेयर करना फेयर बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज दोनों ईरा अलग है. ये ईरा में ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता तो आई डोंट नो वेयर दिस क्लब वुड हैव बीन एट ऑल. वो ईरा में रोनाल्डो नहीं आता तो हम शायद चैंपियंस लीग फाइनल तक नहीं पहुंचते. वो जीता है जो भी. सो हाउ, आई डोंट नो हाउ टू क्वांटिफाई इट. इफ यू वांट मी टू कंपेयर इट, आई विल से रोनाल्डो, बट आई फील अनफॉर्चुनेटली 20 ईयर का ऑलमोस्ट ईरा गैप है. 2007, 8, 9 वर्सेस 25, 26, 27. आप देखो नेक्स्ट ईयर 20 साल का फर्क आ गया ऑलमोस्ट. So the eras are different. If you want me to pick, I'll pick it. But I think comparison is not fair. अच्छा, who are you supporting in World Cup? कौन सी कंट्री को? मैं नेदरलैंड्स को एज ए नेशनल टीम में इतना मतलब मुझे किसी टीम से लगाव नहीं है. बट बिकॉज ऑफ रूड वैन निस्टेलरॉय ना, बैक इन द डे आई सपोर्टेड नेदरलैंड्स. तो मैं नेदरलैंड्स को ही देखता हूँ. हाँ. आपका फेवरेट प्लेयर रूड वैन निस्टेलरॉय? He wasn't my favorite player, but I just liked him at that point. Okay. My favorite player was David Beckham, but I wasn't a passionate at England. Like even at that time, I was like, नहीं शायद इंग्लैंड नहीं, नेदरलैंड्स सही है. चलो, अच्छा, डेविड बेकम से क्वेश्चन है मेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा, डेविड बेकम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड या रोनाल्डो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे इसमें, क्योंकि आई एम ऑल्सो बेकम फैन. मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, बट फुटबॉल एज अ वर्ड मैंने उससे सीखा कि यार ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. देखो फिर से दो ईराज है. सॉरी, आप बोल रहे थे. सॉरी. हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं इंट्रोड्यूस फुटबॉल में नॉट एज अ स्पोर्ट बट एज अ ब्रांड वैल्यू जो बेकम लेके आया था अपने साथ फॉर अ फुटबॉलिंग थिंग, जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग एंड ही हैज़ अ मार्केट स्पेस. वो एक अच्छा मार्केट प्रोडक्ट था फुटबॉल के लिए. मैंने बचपन में फुटबॉल के बारे में सुना वहीं से है. फॉलो मैंने रोनाल्डो से किया है. बट हाँ, कमिंग टू यू, देखो अगेन दो डिफरेंट ईरा. हम ब्रूनो फर्नांडिस ये बाजू आ रहे हैं तो बेकहम वो बाजू जा रहा है. हाँ, बट हैंड ऑन माई हार्ट, आई थिंक डेविड बेकहम. डेविड बेकहम. Again, the time in which David Beckham broke into the team, वो टीम की composition, वो टीम की strength थी. जब वे रोनाल्डो stood out for United with Wayne Rooney, with Berbatov, Tevez आया, Nani helped him obviously a lot. Midfield with Scholes, Carrick जो थी हमारी, Vidic, Rio. At the same time, you go backward, then you look at that team. It's a very good team again. You name the players, the who's, Ole Gunnar Solskjaer, York, Cole, Giggs. Scholes तभी था, Roy Keane, सब था. हाँ. I feel that even all of that power, again without David Beckham, a few things वो टीम में टिक नहीं होती. I don't think it was possible. सेम. मैं भी मतलब बेकम बायस हूँ काफ़ी ज़्यादा.